डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello everyone, hope you all are doing well. Be positive, stay positive, and always ready to learn something new, right? So let's start a new topic. I am Neelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University welcomes you in a Chaitanya Studio online lecture series of BBA course, paper code number 102, which is Basics of Accounting, Block 4, Unit 2, which is Bills of Exchange. So let's start with the learning objective of this unit. After learning this unit, you will be able to understand meaning of bills of exchange and promissory note, characteristics and different parties to the bill, specimen of bill and note, difference between bills of exchange and promissory note, terms of bill, due date and day of grace, disposable of use of a bill, means how to disposal your bill. So let's start with the introduction. Understanding the accounting system, transactions are usually categorized into two parts. One is cash and second is credit. Cash transactions, as we all know, those transactions which transfer the payment in cash, and other transactions is a credit transaction. So there are two type of transaction, cash transactions and credit transactions. Transactions are those where cash is not paid immediately, but it is payable after a specific period, subject to whether the condition were agreed at the time of transactions. Means credit transactions में क्या होता है कि it is payable after specific period, कि इतने समय में 40 आफ्टर 40 डेज या आफ्टर 2 मंथ्स आपको सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करना रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. The time period decided for the further payment in a credit transactions depends on the types of business, current situations and mutual understanding amount of the transactions conditions for the opposite party. मीन्स जो सामने वाली पार्टी है, देयर इज टू पार्टीज, जो प्रोडक्शन करती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, तो वो है फर्स्ट पार्टी, एंड सेकंड पार्टी जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रही है, तो उसे पेमेंट करना होता है. तो जो क्रेडिट पार्टी होती है उसको सर्टन टाइम दिया जाता है कि आफ्टर एंड ऑफ द 2 मंथ, आफ्टर 60 डेज या आफ्टर 40 डेज आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ मनी. तो जो है डिपेंड्स है, वो किस पे डिपेंड होता है, तो वो किस तरह का बिजनेस है, टाइप ऑफ बिजनेस, करंट सिचुएशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दो पार्टीज के बीच में कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है कि आगे हमने कितना सामान दिया था और उसने टाइमली पेमेंट किया था कि नहीं किया था. तो जो दोनों पार्टी के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस है, कितना बड़ा ट्रांजेक्शन है, उस पर डिपेंड करता है. कंडीशंस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, ऑपोजिट पार्टी की कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि मतलब वो कैपेबल है पेमेंट करने के लिए, तो ही उसे क्रेडिट पे जो सर्विसेज है, जो गुड्स है, जो प्रोडक्शन किया हुआ है, वो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो पेमेंट कर पाएगा, बट अभी 3 मंथ के लिए या 5 मंथ के लिए हम उसे क्रेडिट दे रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. सो देयर इज टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन जिसमें तो ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको पेमेंट करना रहता है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसमें आपको सर्टन स्पेसिफिक पीरियड दिया जाता है कि आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड यू हैव टू पे सर्टन टाइम ऑफ मनी. So it is called a credit transactions. In a present times, the frequency of credit transactions has increased, the importance rising day by day. But if the payments of goods and services given non-credit and non-receive on the time, many businessmen have to face financial problems. So always accept to get their payments on time.
to maintain the liquidity and to overcome the situation. These businessmen use a document through which the person from whom an amount is receivable accept his debt in a writing and the state this time of payment and amount or accept to pay the time stated in the document. If the debtor failed to pay, this document can be kept as a proof at the time. So there is two type of document in written. First which is a bills of exchange and second which is a promissory note. तो ये जो क्रेडिट पे हम गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं देंगे, कोई भी हमें प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, बिल देना पड़ेगा. तो ये बिल को हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड दूसरा है प्रॉमिसरी नोट. तो दोनों का डिफरेंस क्या है वो हम आगे जानेंगे. पहले तो हम वन बाय वन जानेंगे कि व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट. सो लेट्स स्टार्ट विथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है तो उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि एज पर द इंडियन नेगोशिएबल एक्ट 1881 defines that the bills of exchange is an instrument in writing containing the unconditional order signed by the drawer directing and a certain person to pay a certain sum of money only at a specified time to a certain person on according to his order or to the holder of the instrument. सो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एज पर द इंडियन नेगोशिएबल एक्ट 1881 उसमें लिखा गया है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो है इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. सामने वाली पार्टी को ऑर्डर दिया जाता है कि आपको इतने समय में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर, उसमें ऑर्डर छुपा हुआ है. जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉपर फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट भी हम आगे देखेंगे. बट डेफिनेशन जो है उसमें क्या कहा गया है कि अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द ड्रॉवर डायरेक्टिंग एंड सर्टेनिंग पर्सन पे अ सर्टन टाइम ऑफ मनी. तो जो क्रेडिटर है वो ऑर्डर दे रहा है, जो क्रेडिट दे रहा है वो बोल रहा है कि आपको पेमेंट करना होगा आफ्टर सर्टन टाइम स्पान, कि 2 मंथ का या 3 मंथ का उसको समय दिया गया है कि आफ्टर 3 मंथ यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज. जो भी क्रेडिट पे आपको मिला है गुड्स एंड सर्विसेज वो आपको 3 मंथ के बाद उसका पेमेंट करना है. सो ये जो है ऑर्डर के फॉर्म में है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो नेचर है वो ऑर्डर का फॉर्म है. तो इसमें कोई भी प्रकार का स्टैंप लगाओ नहीं लगाओ उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बट आपको ऑर्डर दिया जाता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है वो ऑर्डर करता है कि आपको इतने समय में पेमेंट करना पड़ेगा. It must be in writing. Any oral order cannot be considered as a bill. Means ये writing में ही होना चाहिए, orally कोई bills of exchange नहीं होगा. It is an unconditional order to pay, which means that it shouldn't be any condition, must be not a request. The order to pay should be in the form of Indian currency, not for a product or anything in consideration of money. The bill must be addressed to the particular person. जो भी particular person को बिल दिया जा रहा है वो स्पेसिफाई होगा. The amount mentioned in the bill must be clear. जो भी अमाउंट पेमेंट करनी है वो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्लियरली लिखा होगा. The duration of date mentioned in the bill should be certain and clear. जो डेट है वो भी एकदम प्रॉपर है कि किस तारीख को आपको ये ऑर्डर दिया गया है. The bill must be signed by the person who is writing the bill. जो बिल राइट कर रहा है उसकी साइन उसमें कंपलसरी आएगी. वो ऑर्डर दे रहा है कि आपको इतने समय में पेमेंट करना है. The payment of the bill is done on the demand by the drawer after specified period. Demand by the drawer. जो भी डिमांड की है, जो भी लायबिलिटी मतलब जिस पे लायबिलिटी है
पेमेंट करने की, जिसने जवाबदारी ली है, वो डिमांड करेगा कि प्लीज़ मुझे इतनी क्रेडिट दे दो 3 मंथ की या 5 मंथ की, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो द बिल मस्ट बी साइन बाय द पर्सन हु इज राइटिंग द बिल. The payment of bill is done on the demand by the drawer on after specified period. मतलब जितनी डिमांड हुई है उसके अनुसार आपको पेमेंट करना है. तो इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है ये लिखा है. There are 3 parties involved in the bills of exchange. First, which is a drawer. Drawer is a nothing but creditor. He is the creditor and one who is the selling the goods. He is the person who makes and draw the bill. जो बिल को ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉअर कहेंगे, जो है क्रेडिटर. He is entitled the receive money from the debtor. जो क्रेडिटर है वो डेटर से मनी रिसीव करेगा, तो उसे रिसीवर भी कहेंगे. ड्रॉई, he is the debtor and one who purchased the goods. The person upon whom the bill is drawn, he is the acceptor of bill, the one who has to pay. जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रिसीव करेगा उसे हम क्या कहेंगे? डेटर. डेटर इज ड्रॉई. ड्रॉई एंड डेटर आर द सेम. ही इज द एक्सेप्टर ऑफ बिल. द वन हु हैज टू पे, जिसको पैसा पेमेंट करना है आफ्टर सर्टन टाइम स्पान, उसे हम कहेंगे ड्रॉई. एंड थर्ड वन इज अ पेई. यूजुअली ही इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल और द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव मनी और वन हु होल्ड्स इट. मीन्स पेई जो है वो ही ड्रॉवर है. जो मेजोरिटी केस में क्या होता है, ड्रॉवर और पेई दोनों सेम होता है, बट काफ़ी किस्सों में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है. तो जो थर्ड पार्टी है उसे हम पेई कहेंगे. यूजुअली ही इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल, द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव मनी एंड द वन हु होल्ड्स इट. यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, स्पेसिमेन ऑफ बिल्स एक्सचेंज. तो जो है सबसे पहले यहाँ पे आएगा एड्रेस. एड्रेस लिखा है, प्रॉपर डेट लिखी गई है, अमाउंट जो है वो प्रॉपर, जो भी आपको पेमेंट करना है 10,000, 1 लाख, 5 लाख, वो अमाउंट स्पेसिफाई यहाँ पे करनी पड़ती है कंपलसरी. सो डेट इज कंपलसरी, अमाउंट इज कंपलसरी. और यहाँ पे लिखा है कि फॉर द वैल्यू रिसीव बाय यू pay rupees 10,000 only to Mitesh or as per his order after 3 months from today. तो यहाँ पे ऑर्डर किया गया है कि आपको 3 मंथ के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, आपको 10,000 पेमेंट करना ही करना है. तो यहाँ पे रेवेन्यू स्टैम्प हम लगाए ना लगाए वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑर्डर के फॉर्म में है, आपको पेमेंट करना ही करना है. फिर यहाँ पे दोनों प्रकार के सिग्नेचर है, सिग्नेचर ऑफ एक्सेप्टर एंड सिग्नेचर ऑफ रिसीवर. तो दोनों का यहाँ पे एड्रेस आ गया, प्रॉपर एड्रेस है, डेट है, अमाउंट है एंड सिग्नेचर है. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्पेसिमेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है कि जो फॉर्मेट है उसमें क्या आएगा. फ्रॉम द अबोव स्पेसिमेन बिल वी आर अंडरस्टैंड दैट द डेट शुड बी मेंशन इन properly, amount should be mentioned in figure as well as words. It should be clear and same at both the places. फिर definite person, in each bill the party must be defined individual. All the names of party as well as their address must be mentioned. जैसे हमने आगे देखा, यहाँ पे दोनों के एड्रेस प्रॉपर लिखे हैं, जो रिसीवर है और जो गिवर है, दोनों के एड्रेस है, डेट है, अमाउंट है और सिग्नेचर है. फिर पीरियड, दिस इज द टर्म ऑफ टेन्योर ऑफ द बिल विच रन्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच अ बिल्स. जिस डेट से वो इश्यू हुआ है वो डेट भी क्लियर होनी चाहिए, और जिस डे में आफ्टर 3 मंथ कौन सी डेट आएगी तो वो डेट भी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, आफ्टर विच इज द अमाउंट इज पेएबल. सिग्नेचर, इट मस्ट कंटेन द सिग्नेचर ऑफ 2 पर्सन, द ड्रॉवर एंड द ड्रॉई. सो द बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो फॉर्मेट है उसमें डेट, अमाउंट, पर्सन, पीरियड एंड सिग्नेचर प्रॉपर लिखा होना चाहिए, एंड ये ऑर्डर के फॉर्म में है.
Along with the bills of exchange, there is another instrument also mentioned as a promissory note. तो now we are discussing about promissory note. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसका जो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो हमने आगे देखा. नाउ यहाँ पे लिखा है प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट क्या है, उसका जो हिस्ट्री क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है. So let's have a look. Along with the bills of exchange, there is another instrument as mentioned with the Negotiable Instrument Act 1881. दोनों 1881 में ही आता है. जो bills of exchange है वो भी इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आएगा, बट वो सेक्शन 5 में है. और जो यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट दी गई है उसका जो सेक्शन है वो इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 4 में आएगा. Termed as a promissory note. Promissory note, the person who has paid the money to another person, he gives the written promise to pay the amount. The debtor writes a note which promise to pay the creditor. तो यहाँ पे जो डेटर है, जो लायबिलिटीज ले रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है और पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रहा है, तो प्रॉमिसरी नोट कौन लिखेगा, डेटर लिखेगा. द डेटर राइट्स अ नोट विच इज अ प्रॉमिस टू पे द क्रेडिटर. वो क्रेडिटर को प्रॉमिस करता है कि आफ्टर सर्टन टाइम स्पान मैं पेमेंट करूंगा. तो यहाँ पे उल्टा हो गया, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसमें क्रेडिटर ऑर्डर दे रहा है और यहाँ पे डेटर प्रॉमिस कर रहा है कि आई हैव टू पे आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ, आई प्रॉमिस, वो प्रॉमिस करता है अमाउंट पे करने का. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 defines that promissory note as an instrument in writing containing unconditional undertaking signed by the drawer and the pay certain sum of money only at a specified time to a certain person to according to his order to holder the instrument. तो ये बहुत ही रिवर्स चीज है. जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो क्रेडिटर वहां से ऑर्डर देता है कि आपको पेमेंट करना ही है, और प्रॉमिसरी नोट में डेटर की जवाबदारी है. डेटर प्रॉमिस करता है कि आई विल पे सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ पीरियड. अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी इन अ राइटिंग एंड नॉट एन ओरल प्रॉमिस. कोई ओरल यहाँ पे कन्वर्जेशन नहीं होगा, प्रॉपर राइटिंग में आएगा. The note must contain a promise to pay a certain amount. The amount mentioned in the note that must be defined and clear. The promise mentioned in the note must be payment of the money and not a product and consideration of money. The promise to pay money should be unconditional. The duration of promissory note, the date of making the note must be clearly and stated. मीन्स जो द डेट है वो क्लियर लिखा होना चाहिए. जैसे हमने आगे भी वहाँ पे देखा कि डेट इज कंपलसरी, अमाउंट, परफेक्ट फिगर ऑफ अमाउंट इज कंपलसरी. तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉमिसरी नोट में भी कंपलसरी है. डेट इज कंपलसरी, अमाउंट इज ऑल्सो कंपलसरी. द प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी ड्रोन बाय द डेफिनेट, मतलब जो पर्सन को बोला गया है वो पर्सन को कंपलसरी उसमें साइन करना रहता है. अ रेवेन्यू स्टैम्प द प्रिसाइज फॉर्मेट एंड मस्ट बी एफिक्स ऑन द प्रॉमिसरी नोट. रेवेन्यू स्टैम्प जो है वो कंपलसरी है. प्रॉमिसरी नोट में रेवेन्यू स्टैम्प कंपलसरी है, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कंपलसरी नहीं है. पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट, कौन कौन सी पार्टीज आएगी. जैसे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा देयर इज 3 पार्टीज इन्वॉल्व. तो यहाँ पे कितनी पार्टीज है. फर्स्ट पार्टी है ड्रॉवर. यूजुअली ही इज द डेटर. जो लिखता है वो है डेटर. मतलब जो डेटर है, जो जिसके ऊपर लायबिलिटी है, वो प्रॉमिस करेगा, प्रॉमिसरी नोट वो बनाएगा डेटर कि आई हैव टू पे सर्टन काइंड ऑफ सर्टन मनी इन अ सर्टन टाइम पीरियड. पेई विच इज द रिसीवर ऑफ मनी, he is the creditor or holder of the note. Means there is 2 parties involved in promissory note. First is a debtor and second is a creditor. Debtor is nothing but drawer and creditor which is nothing but payee.
यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है प्रॉमिसरी नोट का। प्रॉमिसरी नोट कैसी होती है, तो उसमें एड्रेस प्रॉपर लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि नवरंगपुरा अहमदाबाद, तो एड्रेस है। फिर डेट, कौन सी डेट में ये प्रॉमिसरी नोट दी गई है, 30 सितंबर 2019। अमाउंट है 12,000, अमाउंट भी प्रॉपर लिखा है। फिर उसमें लिखा है कि आई promise to pay rupees 12,000 only to Kulin Bhai Shah or as per his order after 2 months from the today for value received। तो आज के दिन से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आफ्टर 2 months 12,000 पे करूँगा। तो ये है प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट। तो एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए दोनों पार्टीज का, रेवेन्यू स्टैम्प होना चाहिए, तारीख होनी चाहिए एंड अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज द फॉर्मेट। यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रॉमिसरी नोट में क्या आएगा। एक तो पर्सन जो है, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉवर इज द प्रॉमिसरी नोट एंड द रिसीवर ऑफ अमाउंट मस्ट बी definite person on in that note. In the above specimen Kulin and Kalpesh are two definite person, means जो कुलीन है उसको पेमेंट करना है और जो कल्पेश है उसने क्रेडिट दी है, तो कल्पेश इज अ क्रेडिटर एंड कुलीन इज अ डेटर। सो दोनों पर्सन की जो इंफॉर्मेशन है, दोनों का एड्रेस है, वो प्रॉमिसरी नोट में आएगा। डेट कंपलसरी है, टाइम पीरियड कंपलसरी है, अमाउंट कंपलसरी है, सिग्नेचर कंपलसरी है, रेवेन्यू स्टैम्प कंपलसरी है। रेवेन्यू स्टैम्प में क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द नोट लीगली इन द सिस्टम it is necessary to affix the revenue stamp depending in the amount of the note. A note without a stamp cannot be considered as a legal. So in a bills of exchange, revenue stamp is not compulsory because bills of exchange already order form में है, तो वहाँ पे रेवेन्यू स्टैम्प कंपलसरी नहीं है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉमिसरी नोट, सो रेवेन्यू स्टैम्प इज कंपलसरी। अ नोट विदाउट स्टैम्प कैन नॉट बी कंसिडरेड एज अ लीगल, वो लीगल नहीं माना जाएगा। और दोनों में एक चीज कॉमन है कि ओरल कम्युनिकेशन नहीं होगा, दोनों रिटर्न में ही होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें भी कंपलसरी आपको रिटर्न करना पड़ेगा और प्रॉमिसरी नोट में भी कंपलसरी हमें रिटर्न ट्रांजैक्शन, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉमिसरी नोट हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। सो यू हैव टू मस्ट find out in a detail that what is bills of exchange and what is promissory note। तो यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस दिया है। फिर आगे एज पर अवर स्टडी मटेरियल जो उसमें दिया गया है डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे एक लिखा है कि व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज एंगेज इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द वैलिडेट्स द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिटवीन देम। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज नहीं होता है, बट इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें ज्यादातर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज होता है। और यहाँ पे लिखा है कि प्रॉमिसरी नोट, a promissory note is a similar written agreement made between two parties involved in a domestic trade। तो प्रॉमिसरी नोट जो है वो डोमेस्टिक में ज्यादा चलता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों में आएगा, बट ज्यादातर इंटरनेशनल में यूज होता है। यूज्ड इन द सिनारियो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज इन द डोमेस्टिक ट्रेड, इश्यूड बाय द क्रेडिटर एंड इश्यूड बाय द डेटर। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर डिफरेंस जो है दोनों में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो क्रेडिटर द्वारा इश्यू होता है और बिल्स प्रॉमिसरी नोट है वो डेटर द्वारा इश्यू होता है। मींस दोनों में ये मेन डिफरेंस है। नाउ एज पर अवर SLM डिफरेंस यहाँ पे दिया है, बेसिक डिफरेंस। सो पॉइंट वाइज दिया है 1 by 1, ऑर्डर और प्रॉमिस। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कहा है कि अ बिल इज अ अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे मनी एंड प्रॉमिसरी नोट
तो अ नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे मनी। तो दोनों में मेन डिफरेंस मैंने जो आपको बोला वो ही है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो अनकंडीशनल ऑर्डर है, ऑर्डर यू हैव टू पे आफ्टर सर्टन टाइम स्पान। एंड प्रॉमिसरी नोट में कहा गया है कि अ नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं श्योरली पेमेंट करूंगा, तो ये वन काइंड ऑफ प्रॉमिस है और वो है वन काइंड ऑफ ऑर्डर। सेकंड है इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर ऑन डेटर। एंड सेकंड में प्रॉमिसरी नोट में लिखा है अ नोट इज मेड बाय द डेटर एंड सेंट टू हिज क्रेडिटर। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो क्रेडिटर के द्वारा लिखा जाता है और प्रॉमिसरी नोट जो है वो डेटर लिखता है और आफ्टर वो क्रेडिटर को देता है। पार्टीज, तो उसमें लिखा है देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व, बिल ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। एंड प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज है, देयर आर 2 पार्टीज, मेकर ऑफ द नोट एंड रिसीवर। फोर्थ वन इज नीड फॉर एक्सेप्टेंस, it is compulsory for the acceptor to accept the bill on whom it is drawn। and सामने लिखा है there is no need for any acceptance as it is made by the debtor himself। डेटर ही प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस अगर वो मतलब निर्धारित जो प्रॉमिस किया है उस समय से वो समय चूक गया तो दूसरी प्रॉमिसरी नोट भी हम रेडी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट, the acceptor is responsible for the payment। and promissory note में लिखा है कि the responsibility of payment in the note lies with the drawer। days of grace, grace period मिलता है कि नहीं मिलता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा है कि 3 days of grace period is allowed after a period of bill pay for the amount। and सामने लिखा है no day of grace period allowed in the case of promissory note। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है जबकि प्रॉमिसरी नोट में ग्रेस पीरियड नहीं है। नेक्स्ट, डिसऑनर, when the acceptor of a bill fails to pay the money on a maturity date, it is known as a dishonor of bill and notice is to be issued। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें समझना है, सपोज हमने कोई भी ट्रांजेक्शन किया 25 अप्रैल को, तो आपको पहले तो 3 मंथ की क्रेडिट दी है, तो आफ्टर 3 मंथ कौन सी डेट आएगी, विच इज़ 25 अप्रैल को हम काउंट करें तो मई, जून और जुलाई, तो 25 जुलाई को उसके 3 मंथ कंप्लीट होंगे, राइट। और दूसरा उसको 3 डे का ग्रेस पीरियड मिलेगा, तो 25 जुलाई तो ऑलरेडी है आफ्टर 3 मंथ, एंड 26, 27 एंड 28, तो 28 जुलाई जो है वो है उसकी मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी डेट पे उसको कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया गया है। तो नोटिस अगर वो पेमेंट करने के नहीं कर पाता है, कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, नोटिस इश्यू होगी कंपलसरी, वो लीगली नोटिस इज टू बी इश्यूड टू द पार्टी कि यू हैव टू पे द पेमेंट। एंड सामने लिखा है नो नोटिस टू बी इश्यूड इन केस ऑफ डिसऑनर। अगर प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर होती है तो उसमें कोई नोटिस इश्यू करना नहीं होता है, दूसरी प्रॉमिसरी नोट जो है उसकी जो प्रोसेस है उसकी उस हिसाब से प्रॉमिसरी नोट आप दूसरी बना सकते हो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। आई होप ये वीडियो एंड जो डिस्कशन है आपके लिए यूजफुल होगा। Thank you so much. We are discussing some more unit in the next lecture series. Thank you so much. स्वाध्यायः परमम्